ضد کر کے میں لے لوں گی بھیا سے وہ سب تحفے، ضد کر کے میں لے لوں گی بھیا سے وہ سب تحفے، بازاروں سے کوفے کے جو کچھ بھی خریدا ہے، بازاروں سے کوفے کے جو کچھ بھی خریدا ہے، بیمار سمجھتی ہے کہ پھولا پھلا عنبا ہے، اے کاش میری بیوی سچ ہوتا تصور یہ، اے کاش میری بیوی سچ ہوتا تصور یہ، کیسے کہوں کنبے پر کیا واقعہ گزرا ہے، کیسے کہوں کنبے پر کیا واقعہ گزرا ہے، صغریٰ کی نگاہوں میں کچھ اور ہی نقشہ ہے، بیمار سمجھتی ہے کہ پھولا پھلا عنبا ہے۔ کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے اے جان کربلا کے، اے چاند چلوگر ہے ہاشم کا چاندیا پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند کربلا
بلا کے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند کربلا کے بازو کٹے یہیں پر عباس وفا کے اذن بغان آیا پانی بھی لا نہ پائے اے چاند کربلا کے اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے سر بری تلاشے اے جان کربلا کے دنیا مجھے ایسا کوئی بتا دے دنیا کوئی ایسا مجھے بتا دے بہتے ہوئے پانی پہ جو دیوار بنا دے بہتے ہوئے پانی پہ جو بنا اصغر جو چلے رہنے کو تو زینب نے دعا دی اصغر جو چلے زینب نے دعا دی اللہ تجھے کرا بنا
اللهم صل على محمد. Who said that? Okay, simple. He's the one who's going to take care of it. صبح نبی سے مقصد منزل قریب ہے. صبح نبی سے منزل مقصد قریب ہے. آرام گاہ جانے پایا بر قریب ہے. مال تو دور رہ گیا مشہور قریب ہے. جس جال ہے بنے گی وہ سرحد قریب ہے. جس جال ہے بنے گی وہ سرحد قریب ہے. جاتے ہیں آپ خلق کی مشکل کشائی کو. آئی ہے کربلا سے آزاد پیشوائی کو. آئی ہے کربلا سے آزاد پیشوائی کو. اس دن بہت اداس تھا زہرا کا لادگار. اس دن بہت اداس تھا زہرا کا یادگار. سردی تھی روح پہ گیسوؤں پر آقا ہوا. صحرا پہ گئے نظر تھی گئے سوئے کو سا. کہتے تھے دیکھ دیکھ کے گردوں کو بار بار. کہتے تھے دیکھ دیکھ کے گردوں کو بار بار. کس کو نہ بے وطن کیا کس پر جفا ہے. دہر تو نے کسی سے وفا لگی ہے. دہر تو نے کسی سے وفا لگی. اتنے میں کے شاہ سے زینب نے یہ کہا بھیا مجھے بتاؤ تو رونے کی وجہ کیا. فرمایا شاہ نے کہ بہن قہر ہو گیا. اور بیٹوں سمیت قتل ہوا میرا بیٹوں سمیت قتل ہوا میرا. مسلم سے کوفیہ میں بڑی وفائی کی. ماری نہ گاڑی نہ لاش بھی میرے مظلوم بھائی کی. گاڑی نہ لاش بھی میرے مظلوم بھائی کی. بیٹوں کے رانڈ ہو گئی عباس کی بہن. رنگ سالہ اس کو دھوکے نہ اس کو ملا کفن. مارا گیا میرے لیے ہے وہ ساتھ شکار. اب ہم نہ پھر کے جائیں گے ہم سے چھٹا ہوتا. اب ہم نہ پھر کے جائیں گے ہم سے چھٹا ہوتا. آپچی فاصلے فاطمہ کے ساتھ اڑانے کی. زینب یہ دیتا ہے میرے مارے جانے کی. زینب یہ
देखा बहन तड़पती है सरनंगे दिल गम से टुकड़े हो गया रोए झुकाए बोले करीब आके खुदा पर करो बोले करीब आके खुदा पर करो समझेंगे उनसे कातिल मुस्लिम नजर में पीटो न सर को सैयद वाला सफर में पीटो न सर को सैयद वाला सफर में समझाते थे बहन को ये अब्बा से ना रोते थे सर झुकाए हुए शायद मुस्लिम को याद करके हरा बेटे बेटी पुकारती थी के हाय हाय मेरे बेटी पुकारती थी के हाय हाय मेरे तुम दिन हमारी जिंदगी की सूरत निगाह गई बेटों को साथ ले गए बेटी बिछड़ गई बेटों को साथ ले गए बेटी बिछड़ गई सिबते नबी से मकसद मोमिनीन चंद एलानात मजालिस का सिलसिला 8 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगा। जनाब मौलाना सरकार मेहदी साहब और जनाब मौलाना सखावत हुसैन साहब क़िबला 12 मुहर्रम तक मुसलसल मजालिस से खिताब फरमाएंगे। ये मजालिस 7:30 बजे शब मुनक़िद हो रही हैं। आशूर के बाद भी 7:30 बजे ठीक मजालिस शुरू हो जाया करेंगी। सिर्फ शाम गरीबा की मजलिस 7 बजे शब शुरू होगी। 13 मुहर्रम से 17 मुहर्रम तक अल्लामा जावेद जाफरी साहब 7:30 बजे मजालिस से खिताब फरमाएंगे। लेडीज की मजालिस 6 बजे शाम यहाँ पे मुनक़िद हो रही हैं, लेकिन 5 मुहर्रम से ये मजालिस 5:30 बजे शुरू हो जाया करेंगी। 5 मुहर्रम से ज़नानी मजालिस 5:30 बजे शुरू हुआ करेंगी। बच्चों की मजलिस का इंतज़ाम बेसमेंट में है, वो शुरू हो चुकी है। जो साहिबान अपने बच्चों को उन मजलिस में भेजना चाहें वो नीचे बेसमेंट में उनको भेज दें। हमारे प्रोग्राम्स में ज़ियारत के सिलसिले में जो स्केजुअल प्रिंट हुआ है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 5 मुहर्रम को ताबूत हज़रत औन मोहम्मद बरामद होंगे। 6 मुहर्रम को ताबूत शहजादा हज़रत अली अकबर। 7 मुहर्रम को हज़रत कासिम की मेहंदी। 8 मुहर्रम को अलम हज़रत अब्बास और 9 मुहर्रम को शहजादा हज़रत अली असगर का झूला बरामद होगा। पार्किंग के सिलसिले में तमाम मोमिनीन से दरख्वास्त है कि मासूम के पार्किंग लॉट के अलावा 3 और पार्किंग लॉट हैं जहां पे पार्किंग कराई जा रही है। बैंक के पार्किंग लॉट में जो पार्किंग कर रहे हैं लोग, वहां पे शटल का इंतज़ाम है वहां से लाने और मजलिस के बाद यहां से वहां ले जाने के लिए। तो अब जो लोग वहां पर पार्किंग करें वो शटल लेकर यहाँ पर आ जाएं और वापसी में भी उनके लिए शटल दस्तयाब होगी। पार्किंग के सिलसिले में एक और दरख्वास्त कि यहाँ पर पिकअप और ड्रॉप ऑफ करते वक्त सब्र तहम्मुल का थोड़ा सा मुजाहरा करें और हॉर्न न बजाएं जिससे नेबरहुड डिस्टर्ब हो रहा है।
मासूम की इंतज़ामिया तमाम मोमिनीन से, शुरकाए मजलिस से माजरत ख्वाह भी है, शर्मिंदा भी है कि हम सही तरीके से हक़ खिदमत अदा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ भी हद इम्कान में है वो की जा रही है। उसके बावजूद आप लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है उसके लिए इंतज़ामिया इंतहाई माजरत ख्वाह भी है, आप लोगों से शर्मिंदा भी है। बावाज़े बुलंद नारे सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأقطعي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قابل صدر احترام جناب مولانا و مومنین و مومنات، معصوم امام بارگاہ شکاگو میں 1423 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج چوتھی مجلس ہے اور ہم مسلسل تربیت کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ کل کی گفتگو اس پیرائے میں داخل ہو گئی تھی کہ قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں قصوں کو کوٹ کیا ہے ان میں عبرتیں پنہاں ہیں، ان میں احکام شریعت مضمر ہے، اسی لیے قصوں کو بار بار دہرایا گیا۔ قرآن قصہ گوئی کی کتاب نہیں بلکہ قرآن احکام شریعت کی کتاب ہے۔ آج کی تقریر کا آغاز اس جملے سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ تربیت کی بابت ایک اہم ایشو جو آج میں اپنے آڈینس سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو علم اور فن پہ توجہ ہے، یعنی نالج پر اور ٹیکنالوجی پر۔ وہ قومیں مر جاتی ہیں کہ جو علم پر توجہ نہ دیں، اس لیے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کا ایک ارشاد گرامی ہے
उसे बयान करके आगे बढ़ रहा हूं। इरशाद हुआ अल इल्म अस्लु कुल्ल खैरिन वल जहलु अस्लु कुल्ल शर। इल्म हर खैर की असल है, जहालत हर बुराई की जड़ है। लिहाजा अगर इल्म रहेगा तो मारिफत आएगी, जब मारिफत आएगी तो इंसान बनेगा, जानवर नहीं बनेगा। इसलिए कि कुरान मजीद ने इसी इंसान की जब डिवीजन की है तो कहा कि बल हम अजल, कभी ये इंसान खुद हैवान से भी पस्त हो जाता है, वो उसी वक्त होता है जब ये इल्म की मेराज को छोड़ देता है और जहल के नुज़ूल की तरफ जाना शुरू कर देता है। कुरान मजीद की जरा आयतों को देखिए। कल जिन आयतों को मैंने तिलावत किया उसमें सिर्फ एक टुकड़ा सुनिए, वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा। अल्लाह आदम को उस वक्त तक ताज खिलाफत नहीं पहना रहा जब तक के ताज इल्म नहीं पहना लेता। खिलाफत बाद में है, इल्म पहले है। ओहदा बाद में है, तालीम पहले है। हुकूमत बाद में है, इल्म पहले। और अब फौरन जो दूसरा तजर्बा है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो पहले साहिब शरीयत है, उन्हें लहजा बदल के अल्लाह ने कहा वस्नाइल फुल्का बिअयुनिना व वहयना। किश्ती बनाओ हमारी आंखों के सामने, किश्ती बनाओ हमारी वही से। हमारी वही में इल्म बता दिया, किश्ती बनाने में टेक्नोलॉजी की अहमियत बता दी। इसलिए कि अगर आप इल्म रखेंगे और रिसोर्सेज को यूज नहीं करेंगे तो उस इल्म को जंग लग जाएगा। बस नइल फुल्का बिअयुनिना व वहयना। और जब हजरत इब्राहीम का जिक्र करता है तो फरमाता है कि इब्राहीम को सुहूफ इब्राहीम व मूसा, हमने इब्राहीम और मूसा दोनों अंबिया को सहीफों के अंदर इल्म रख के दे दिया। वइज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत, याद करो कि हमने तुम्हें किताब का भी इल्म दिया और हिकमत का भी इल्म दिया। वलूतन आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। देखो लूत का किस्सा भी याद रखना, हमने उन्हें हुक्म भी दिया और इल्म भी दिया। अंबियाए मासलफ में इल्म बार बार जिक्र हो रहा है। हजरत खिज़र के बारे में कहा वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने उन्हें इल्म लदुन्नी अता किया है। हजरत खिज़र को इल्म लदुन्नी। और हजरत दाऊद के बारे में कहा वअल्लमनाहु सनअत लबूस, हमने उन्हें ज़रा बनानी सिखाई है ताकि अम्र तबलीग में लोगों के डोनेशन के मोहताज न हो। हमने उन्हें ज़रा बनाने का इल्म दिया है। और इसी शान से अल्लाह उनके फर्जंद के बारे में जिक्र करता है कि वो खुद ये कहते हैं या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैर, ऐ लोगों तुम्हें खबर भी है हमारा घराना क्यों तुम पे फौकियत रखता है। इसलिए कि तुम तो परिंदों से बोल नहीं सकते, हम बोल भी सकते हैं, परिंदों की जबान को समझ भी सकते हैं। तो गौर करते आ रहे हैं किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर नबी के इल्म का जिक्र करता है। मगर अगर आप गौर करें तो हर नबी को जो इल्म दिया है वो महदूद इल्म है, लिमिटेड नॉलेज है। आदम को अस्मा का इल्म दिया है, नूह को किश्ती बनाने की वही की है, किश्ती बनाने का इल्म दिया है, खिज़र को इल्म लदुन्नी दिया है, दाऊद को ज़रा बनाने का इल्म दिया है, ईसा को किताब और हिकमत दी है, मूसा को तौरात दी है और हजरत सुलेमान को परिंदों से बोलने का इल्म दिया है। वो अल्लमतनी मिन तावील अल अहादीस, और अपने खूबसूरत
खूबसूरत नबी को, यूसुफ को बताया कि लोगों को ताबीर ख्वाब कैसे बताते हैं। ये किसी के बारे में नहीं किया कि हमने सारा इल्म तुम्हें दे दिया है। जब मेरे हबीब की बारी आई तो आवाज दी, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, जो अंबिया को दिया था वो भी तुम्हें दिया है, और जो कुछ इल्म था कायनात में वो तेरे सीने में रख दिया। गौर कर रहे हैं आप? खुदा की कसम, आदम से लेके ईसा तक किसी नबी में मजाल नहीं है मेरे मोहम्मद के इल्म का मुकाबला कर सके, इसलिए कि सबको महदूद इल्म देता रहा, इसलिए कि नबूवतों का दायरा महदूद था, क्योंकि इसकी नबूवत का दायरा कयामत तक फैला हुआ है, और इसकी नबूवत का इकरार आदम से लेके ईसा तक हर एक पर जरूरी है। लिहाजा इसके सीने में वो इल्म रखा कि जो किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। एक साहब ने तफसीर लिखते हुए बड़ी कमलुत्फी करते हुए लिखा कि यहाँ तो लिखा है कुरान में कि मोहम्मद को हमने मजहूल दिया है। तवज्जो चाहता हूँ तो मैंने कहा इस मजहूल की बरगश्त उस आलिम की तरफ नहीं है कि जिसके सदके में इल्म पैदा हुआ है, मजहूल की बरगश्त उम्मत की तरफ है। वो सारा का सारा हमने तेरे सीने में रख दिया है। अब जरा ईमान से बताइएगा, आदम को दिया अस्मा का इल्म ज़हन में रहे। आपने भी अपने बच्चों की तरबियत में इल्म को फाउंडेशन बनाना है, नॉलेज को फाउंडेशन बनाना है। मेरी ये ख्वाहिश है हमारी कौम के लोग बड़े साइंसदान बने, बड़े कीमियादान बने, बड़े डॉक्टर बने, इसलिए कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम लोगों के घर कैसे पहुंचेंगे। इसकी मैं मिसाल यूं देता हूं कि मुल्क हो सकता है फ्यूचर में वीजे देने बंद कर दे, मगर टेक्नोलॉजी के जरिए इंटरनेट से तबलीग घर में तो जाती रहेगी। गौर कर रहे हैं मेरे मोहतरम सामी, तो अगर आप इल्म और टेक्नोलॉजी रखते हैं तो आपको दुनिया के वीरों की जरूरत ही नहीं होती। पाबंदी के बावजूद भी आप लोगों के घरों में पहुंच जाते हैं। खुदा की कसम, कुछ ऐसा ही कमाल था जिक्र अली और हुसैन में कि पाबंदियों के बावजूद नस्लों में फर्क न रहा। आपकी औलाद की तरबियत में इल्म फाउंडेशन रहे। आप हमेशा आलिम को अपने बच्चों का उस्ताद बनाएंगे। तवज्जो चाहता हूं, अगर आपने इस मिंबर पर मासूम की इंतजामिया ने माशाअल्लाह जितनी भी मासूम की इंतजामिया है, हमारा ताउन सबसे जारी रहा है और सबसे रहेगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि ये एग्जेक्टिव आती जाती रहेगी, मासूम यही रहेगा इंशाअल्लाह। सब हमारी आंखों का नूर है, सब हमारी आंखों के तारे हैं। अगर ये एक शख्स को मिसाल के तौर पर मुझे आज बुलाया, इन्होंने कहा कि मौलाना वकालत की बड़ी शोहरत सुनी है इसलिए आपको बुलाया है, और मैं अगर हर मजलिस में भूलना शुरू कर दूं, इब्तिदा में भी भूल रहा हूं, दरमियान में भी भूल रहा हूं, आखिर में भी भूल रहा हूं, क्या अगले साल इंतजामिया मुझे बुलाएगी? हरगिज़ नहीं। या इसकी मिसाल यूं देता हूं, आप डॉक्टर के पास गए, आपने अपना चेकअप कराया, आपको डायबिटीज थी, उसने किसी और का चेकअप निकाल के दे दिया, क्या आप बाद में भी उसी की लेबोरेटरी में अपना खून चेक कराने जाएंगे? हरगिज़ नहीं। आपने एक वकील किया और वकील जब कोर्ट में गया तो फाइल ही दूसरी उठा के ले आया, क्या आप आइंदा उसे वकालत देंगे? तो मासूम का मजमा इतना इतना पढ़ा लिखा है, इतना अक्लमंद है कि बार बार भूलने वाले मौलवी को मिंबर पे नहीं बिठाता, बार बार भूलने वाले को डॉक्टर नहीं मानता, बार बार भूलने वाले को अपनी वकालत नहीं देता। मेरे अल्लाह ने भूलने वाले
हुआ वअल्लमका मा लम तकुन तालम, हबीब तेरे सीने में मजहूल रख दिया, यानी जो दुनिया से मजहूल था, जो कुछ अननोन की फहरिस्त बन सकती है आदम के दौर से लेके कयामत तक, सारा तेरे सीने में रख। और कर रहे हैं। अब मैं जरा हाथ जोड़ के पूछूंगा अपने पढ़े लिखे मजमे से तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से मेरा सवाल है, जरा ईमान से बताइएगा, हजरत आदम को दिया अस्मा का इल्म, हजरत नूह को दिया किश्ती बनाने का इल्म, हजरत इब्राहिम को दिया सहीफों का इल्म, हजरत मूसा को दिया सहीफों का इल्म, हजरत ईसा को दिया किताब हिकमत का इल्म, हजरत यूसुफ को दिया ख्वाब की ताबीर बताने का इल्म, हजरत खिज़र को दिया इल्म लदुनी, हजरत दाऊद को दिया ज़िया बनाने का इल्म, हजरत सलमान सुलेमान को दिया मंतिक़ तय परिंदों से बोलने का इल्म। तो अब मोहम्मद मुस्तफा को सारा जब मिला के दे दिया तो अब मोहम्मद के मिंबर पे वो तो नहीं आएगा जो अपने बारे में भी न जानता। की तरबियत की फाउंडेशन रहना चाहिए। यही वजह है मेरे मोहतरम सामीन कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। जब रहमान ने जिक्र करता है तो इल्म की बात पहले करता है, तखलीक की बात बाद में करता है। आप जितने बड़े भी आलिम हो जाए, पैदा होने के बाद ही तो आलिम बनेंगे। कोई मखलूक तो ऐसी है कि जो शिकम मादर में भी आलिम है। इसलिए कहा कि तालीम पहले, तखलीक बाद में। वो अल्लाह से कुरान पहले सीखते हैं और खल्क बाद में होते हैं। अब जरा एक सवाल और भी मैं पूछ लूं अपने पढ़े लिखे मजमे से, अगर ये मान लिया जाए मेरे मुसलमान भाइयों का नजरिया कि ये तो कुरान आया ही 40 साल के बाद है, तो अगर कुरान आया ही 40 साल के बाद है तो मखलूक को पहले कैसे सिखाता रहा? ये तो कह रहा है कि कुरान पहले सिखाया है और पैदा बाद में किया है। तवज्जो कर रहे हैं या नहीं? तो गोया मालूम हो गया कि ये कुरान पहले मौजूद था, ग्रेजुअली तो सिर्फ उम्मत के लिए आया है, नबी और आले मोहम्मद के लिए हमेशा से मौजूद है। यही वजह है मेरे मोहतरम सामीन के हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खुतबे निकाह पढ़ने बैठे हैं तो आपने इस तरीके से शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान में आएगा 15 साल बाद। तवज्जो चाहता हूं मेरे मोहतरम सामीन, कुरान में तो 15 साल के बाद आएगा। अबू तालिब 15 साल पहले कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मेरे मुसलमान भाइयों जरा ईमान से बताओ कि तुम 15 साल बालिग होने के बाद अगर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो तो मुसलमान हो जाओ, और जिसने कुरान के नुज़ूल से 15 साल पहले पढ़ा हो वो काफिर कहते हैं।
علامہ خنیزی کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، جو حنفی المسلک ہے بلکہ پہلے حنبلی المسلک تھے جو اور زیادہ سخت ہوتے ہیں عقیدوں میں، وہ یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب برادران اہل سنت والجماعت کی ایک تفسیر سے ایک جملہ اور بھی سن لیجئے۔ انہوں نے لکھا کہ سب سے پہلے میدان احد میں سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت کے وقت علی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بعد میں اللہ نے قرآن میں بھیجا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے محترم سامعین، غور کیجئے گا، یہ وہ عالم قرآن ہے جو پیدا ہونے سے پہلے پڑھ کے آتے ہیں۔ باپ الحمدللہ پہلے کہتا ہے، اللہ قرآن میں بعد میں بھیجتا ہے۔ بیٹا انا للہ پہلے کہتا ہے، اللہ قرآن میں بعد میں بھیجتا ہے۔ اور یاد رکھیے مسلمانوں، یہ دو ہی تو موقع ہوتے ہیں۔ مسلمان جب خوش ہوتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں، اور جب غمگین ہوتے ہیں تو انا للہ کہتے ہیں۔ اتنا طے ہو گیا، ہر مسلمان کے دل میں انکانشیسلی ابو طالب کی محبت بھی ہے اور علی کی محبت بھی ہے۔ تو تربیت کے عنوان میں علم کو کبھی فراموش نہ کیجیے گا۔ جتنا آپ علم میں بلند ہوں گے اتنا آپ کی قوم ترقی کرے گی۔ جو لوگ کمپیوٹر نہیں جانتے انہیں اس لیے بھی سیکھنا چاہیے کہ جب تک کمپیوٹر پہ بیٹھنا میں نے شروع نہیں کیا مجھے ایک نقطہ سمجھ ہی نہیں آیا، اور وہ تھا نقطۃ تحت الباء۔ یہ کس طرح کہتے ہیں کہ پوری کائنات کو ایک نقطے میں سمیٹ دیا۔ اب جو کمپیوٹر پہ بیٹھنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر والا ایک ڈاٹ میں لاکھوں بائٹس کی میموری کو رکھ لیتا ہے، تو جب بندوں کی تخلیق میں ایک ڈاٹ میں لاکھوں کی میموری آ جاتی ہے، اللہ کی تخلیق کے ایک ڈاٹ میں کائنات آ جائے تو ہم کیا؟ یاد رکھیے گا انا نقطۃ تحت الباء۔ یہ باہی کا نقطہ کیوں بنایا، جیم کا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جیم میں سے نقطہ ہٹا دے تو ہے رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ خے کا نقطہ نہیں، خے کا نقطہ ہٹ جائے تو پھر ہے۔ زوئے کا نقطہ نہیں، اس لیے کہ نقطہ ہٹ جائے تو توئے۔ غین کا نقطہ نہیں، اس لیے کہ نقطہ ہٹ جائے تو ہے۔ اللہ اکبر۔ با کا نقطہ بنایا کہ اگر نقطہ ہٹ جائے تو کچھ نہیں رہتا۔ اور خدا کی قسم ایک کتاب ہے بڑی الفابیٹس کے اوپر ہے یہ کتاب، اور لکھنے والا جو ہے وہ مسلمان نہیں، دا ہسٹری آف الفابیٹس۔ اس میں لکھتا ہے کہ اہل فینیقیہ اور اہل مصر نے کوڈ ورڈ بنائے تھے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے۔ اس وقت یہ الفابیٹس کریٹ ہوئے، اہل فینیقیہ اور ایجپٹ والوں نے آپس میں یہ کوڈ ورڈ بنائے۔ مثلا انہوں نے یہ کوڈ ورڈ بنایا کہ اگر شین لکھیں، شین، تو اس سے مراد ہوگا شجر کے درخت بیچنے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، شین لکھیں تو شجر یعنی درخت بیچنے ہیں۔ اگر نقطے ہو تو وہ پھل والے درخت ہیں، اور بغیر نقطوں کے ہو تو بے ثمر درخت ہے۔ یہ کوڈ ورڈ۔ جیم اگر لکھیں تو جمل بیچنا ہے، اونٹ بیچنے ہیں،
अगर नुक्ते के बगैर हो तो समझो बगैर सारवान के, और अगर नुक्ते के साथ हो तो गुलाम को भी साथ बेचेंगे। अब मैं कहां तक सारे बताऊं, सिर्फ एक और सुन लीजिए। उन्होंने लिखा, क्रिश्चियन लिख रहा है, क्रिश्चियन, इसकी किताब से पढ़ के मैं बता रहा हूं, द स्टोरी ऑफ अल्फाबेट। वो ये लिखता है कि उन्होंने बे को बनाया, जिसे अरबी में बा कहते हैं, बैत के लिए, घर के लिए, और अगर नुक्ता हो तो समझो मालिक है, और नुक्ता ना हो तो बेमालिक है। क्या कहने किसी मुसलमानों की कंट्रोवर्सी में हम जाते ही नहीं। क्रिश्चियन ने भी तस्लीम कर लिया कि अगर नुक्ता हो तो घर वारिस वाला है, घर में मालिक है, मालिक वाला है, और अगर ना हो तो समझो लावारिस है। अब आप समझे हैं किस लिए बैतुल्लाह में आए हैं, ताकि ये लावारिस न बन जाए घर। इसलिए कि कुरान ने भी आवाज दी, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। पहला घर जो अल्लाह ने बनाया वो सरजमीन मक्का में। अब आप में हुज्जाज किराम भी तशरीफ फरमा है, और अल्लाह जिनको नहीं ले गया उनको अल्लाह तौफीक दे कि आइंदा तशरीफ ले जाए। जरा बताइएगा, आप मक्का जाते हैं या बक्का जाते हैं? मक्का ही जाते हैं ना, यहां तो बक्का लिखा हुआ है। जी हाँ, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता, मीम नहीं है, बा है, वही जिसके नुक्ते का जिक्र भी कर रहा था मैं। तवज्जो नहीं है मेरे ख्याल में है? अभी जिस नुक्ते का मैं जिक्र कर रहा हूं, मीम पे तो नुक्ता होता कोई नहीं, बा वही है नुक्ते वाली, कि ये बक्का है। अल्लाह ने जो अपना पहला घर बनाया वो बक्का में बनाया। आप बक्का नहीं जाते, आप मक्का जाते हैं, एम से लिखते हैं, बी से नहीं। तो जरा ईमान से बताइए कि क्या अल्लाह इतना भी नहीं जानता था कि ये मक्का कहलाएगा? बक्का क्यों लिखा? अब मैं एक हम्बल स्टूडेंट ऑफ मकतब अहले बैत के तौर पर बैठ गया, सारी लुगतें निकाल के एक मसला ही हल हो गया। लुगत वाले ने मसला ही हल कर दिया। उसने लिखा, सुम्मियत मक्का तो बक्का था लितुकाइन्ना से, मक्का को अल्लाह ने कुरान में इसलिए बक्का कहा है कि लोग यहाँ आकर रोते हैं। तो पहला घर जो अल्लाह ने बनाया वो हंसने वालों के लिए नहीं बनाया, वो रोने वालों के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसकी दलील दूं कि ये रोने वालों के लिए है, हंसने वालों के लिए नहीं। सुन लीजिए, किताब का नाम है तारीखुल हरमैन। 8 साल तक ये किताब सऊदी अरब में शाह के पैसों से डिस्ट्रीब्यूट होती रही। 8 साल के बाद शुरूर आया कि इसी में उनके खिलाफ मटीरियल, ये 8 साल, और मैं वहीं से लेके आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूं। हमारे हाथों में दी गई ये किताब कि ये तोहफा है शाह की तरफ से। उस तोहफे में लिखा था तारीखुल हरमैन के अंदर ये जुमला अजीब लिखा हुआ था। उसके जो आथर हैं इस वक्त भी जिंदा है, और उनको मुल्क बदर कर दिया गया इस रिवायत की वजह से। जरा वो रिवायत सुन लीजिए। कैलिफोर्निया में आज वो मौजूद है, मुल्क बदरी की जिंदगी गुजार रहे हैं, है हम्बलीउल मसलक। वो ये लिखते हैं कि जब हजरत इब्राहिम ने कहा, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन, बारेला तू गवाह रहना, मैं अपनी ज़ुर्रियत को, बादे ज़ुर्रियत को तेरे घर के जवाब में छोड़ के जा रहा हूं। हजरत हाजरा को छोड़ा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा। इनका वतीरा ये था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भेड़ बकरियां चराने जाया करते थे, और यहां पर जो बैतुल्लाह था उस वक्त वो पर्टिकुलर शक्ल में तो था नहीं, जिस तरह अल्लाह का घर था बिल्कुल उसी तरह के
उसी हुजूम के, उसी बुलंदी के अरब के बदुओं के घर थे। एक रोज जो आए हैं, हजरत इब्राहिम का वतीरा ये था, हजरत इब्राहिम लोगों को भेजते थे अल्लाह के घर का तवाफ करके आओ। एक रोज जो हजरत इस्माइल आए हैं, अपनी मादर गिरामी को रोता हुआ देखा, कहा बेटा इसलिए रो रही हूं कि अल्लाह के घर पे कोई अलामत तो है नहीं, आज तेरे बाबा के भेजे हुए हाजी अरब के बदुओं के घर का तवाफ करके चले गए। उन्हें ये तमीज ही नहीं हुई कि बद्दू का घर कौन सा होता है, अल्लाह का घर कौन सा होता है। उसी वक्त जिब्रील आए और जिब्रील ने कहा बीवी तेरे पास 2 स्याह चादरें हैं, एक पर्दे के तौर पे, गिलाफे काबा के तौर पे ऊपर लटका दे। उस दिन से ये रस्म बन गई कि जिधर काला कपड़ा होगा उधर अल्लाह का घर होगा, जिधर कपड़ा नहीं होता वो अरब के बदुओं का घर होगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो कहा वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, जब हजरत इब्राहिम और इस्माईल दीवारें बुलंद कर रहे थे तो उस वक्त ये कहते जा रहे थे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक वारिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जब दीवारें बुलंद कर रहे थे, ये नहीं कहा कि बनाया था, बनाया तो पहले से है। इसलिए सुनिएगा, इसलिए कि अल्लाह का तरीका और है। अल्लाह का तरीका ये है कि घर पहले देता है, घर वाले बाद में भेजता है। बैत को अल्लाह ने पहले बनाया, बैत का तवाफ करने वाले बाद में आए हैं। तो अभी भी समझ नहीं आई, जब अल्लाह का तरीका ये है कि वो बैत को पहले बनाता है, तवाफ वालों को बाद में बनाता है, बस उसी तरीके से उसने अहले बैत पहले बनाए हैं, मोहब्बत करने वाले बाद में बनाए। जब दीवारें बुलंद कर रहे थे तो यहां पर कौल नहीं है, सुन लीजिए, मकूला है, यानी काला या काला या यकूलाने का लफ्ज नहीं। बस जब दीवारें बुलंद कर रहे थे तो रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम कहा नहीं है। ये हम सिर्फ समझाने के लिए कह देते हैं कि कहा, सिर्फ अल्लाह ने दिल की तमन्ना पढ़ ली। तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह अकबर कहने की जरूरत नहीं पड़ी, दिल की तमन्ना पढ़ ली। दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह का घर रिकंस्ट्रक्ट किया है, रीबिल्ड किया है, क्या ये अच्छा होता अल्लाह इसको कबूल कर ले। अल्लाह ने उसे मकूला बना के कौल के तौर पे कुरान में रख दिया। अल्लाह अकबर, गौर कर रहे हैं, अल्लाह के घर बनाने का सवाब देख रहे हैं। इसलिए भी आपको चाहिए कि अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लेते वक्त आप जितना मैक्सिमम कर सके खिदमत करें, इसलिए कि यहां आपको कहना नहीं पड़ेगा, अल्लाह दिल करके आपको अता कर देगा। अब अगला जुमला सुनिए, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, बारे इलाहा हम दोनों को मुसलमान बनाए रखना, वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी ज़ुर्रियत में एक पूरी उम्मत रखना जो मुसलमान हो। तो जो है या नहीं, उम्मत रखना। अब जरा आयत सुनिए, लक़द बाअसल्लाहु लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर कि उनमें रसूल भेजा। आप सिर्फ उम्मीन वाली आयत तो पढ़िए, जरा ये भी तो पढ़िए, मोमिनीन पर एहसान किया अल्लाह ने कि उनमें रसूल भेजा। भाई रसूल अगर खुद ही 40 साल के बाद मुसलमान होते हैं तो वो मोमिन को बताओ जो रसूल से पहले मोमिन है।
फीकुम रसूला, उस वक्त को याद करो जिस तरह हमने तुम्हारे अंदर रसूल भेजा जो तुम में से था, मिन अनफुसिकुम, वो तुम में से हमने रसूल भेजा है। उसका काम क्या था? यतलू अलैकुम आयातिना, उसका काम था वो हमारी आयतों को तुम पे तिलावत करता था। दूसरा काम क्या था? वयुअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमता वयुज़क्कीकुम, तुम्हारे लिए तालीम किताबों हिकमत देता था और तुम्हारी तरबियत करता था। अगला सेंटेंस अगर आयत का सुन लिया तो इंशाअल्लाह नबी के बारे में कभी किसी को यह डाउट नहीं होगा कि कब से पढ़े थे। इरशाद हुआ वयुअल्लिमुकुम मा लम तकुनू तालमून, और मेरे नबी को इसलिए मैंने भेजा कि तुम्हें वो सिखाए जिसे तुम नहीं जानते। क्या कहने, वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, वो तुम्हें सिखाए, उसकी तुम्हें तालीम दे कि जिसे तुम नहीं जानते हो। अब समझ में आ गई बात ना कि वो इसलिए आया है कि किताब की हिकमत की तालीम दे, तुम्हारी तरबियत करे, आयात इलाही की तिलावत करे और तुम्हें वो तालीम दे जो तुम नहीं जानते। तो इसमें नबी अलग हो गया, उम्मत अलग हो गई। उम्मत है न जानने वाली, नबी है जानने वाला। अब आयत सुनिए, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, ऐ मेरे हबीब कह दो क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हैं? क्या सुन रहे हैं मेरे मुस्लिम इसलिए तो हजरत इब्राहिम भी कहते हैं रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका, अरे इलाहा भेज ऐसा नबी भेज जो तेरी आयतों की तिलावत करे। यही दुआ में तालीम पहले है, तज़किया बाद में है। बाद में सारी आयतों में तज़किया पहले है, तालीम बाद में। 4 आयतें हैं, एक में तालीम पहले है। ऐसा नबी भेज कि ये क्या करे? युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता यतलू अलैहिम आयातिका, आयतों की तिलावत करे, इन्हें तालीम किताब व हिकमत दे, वयुज़क्कीहिम, और इनकी तरबियत करे। उसके बाद जितनी आयतें हैं, सूरह जुमा वाली आयत ले लीजिए, कमा अरसलना वाली आयत ले लीजिए, लक़द मन्नल्लाहु वाली आयत ले लीजिए, सब में तरबियत पहले है और इल्म बाद में है। इसलिए कि नबी जानता था, तवज्जो चाहता हूं, कि आखिरी जमाने में ज्यादा तकरीब एजुकेशन की वजह से होगी। पहले पैरा लगा दो तरबियत का। जितनी तबाही हो रही है इस दौर में वो एजुकेशन के सबब हो रही है। तो पहले पैरा लगा दिया तरबियत का, मांगी थी पहले तालीम, दी है पहले तरबियत। तो जो कर रहे हैं या नहीं? आप जरा उस आयत पे भी गौर कीजिए, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक, मारे राह हम दोनों को इस्लाम पे रख। जरा कुरान से पूछें कि क्या कोई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल-अयाज़ु बिल्लाह कोई डाउट था? अब मेरे जैसा एक गुनाहगार अगर कहे तो बात मानने की है। नबी खलीलुल्लाह और ज़बीहुल्लाह जो कि रिकंस्ट्रक्ट और रीबिल्ड कर रहे हैं अल्लाह के घर को, उनको ये कहने की जरूरत क्या थी कि हमें इस्लाम पे रखना? दूसरी आयत इसकी वजाहत करती है, सुन लीजिए। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। इसलिए वो मुकम्मल मुसलमान था इब्राहिम, जब उसके रब ने कहा था कि सरेंडर कर जा, सबमिट कर ले, 100% 100% हमारे ऑर्डर के सामने सबमिशन कर ले। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कहा मैं 100% सबमिट कर गया। इसलिए तो अब आपने समझ लिया, आज से जरा ये गलत फहमी भी दूर हो जाए। हर कलेमा गो को मुसलमान नहीं कहते, जो 100% सबमिट करता है अल्लाह के हुक्म के सामने उसे मुसलमान कहते हैं।
की बुक्स अवेलेबल हो इस शहर में, देख लीजिएगा, अंग्रेजी की हो, अरबी की हो, उर्दू की हो, पर्शियन की हो, सब में यही लिखा हुआ है कि इस्लाम सरेंडर का नाम, इस्लाम सबमिशन का नाम। यही तो वजह है कि आपका जो पहला वाजिब है, पहला फुरुए दीन में से जो पहला नंबर है, आप उसमें अल्लाह अकबर कहते हुए अल्लाह के सामने सरेंडर ही तो करते हैं। और वो कहता है कि तुमने मेरे सामने सरेंडर किया है, मैं तुम्हारे पीसफुल होने का ऐलान करूंगा। हम दुनिया को बताते हैं कि हम हार्मलेस हैं। अल्लाह अकबर। आयत सुनिए, उस वक्त को याद करो कि जब हमने इस बैतुल्लाह को लोगों के लिए सवाब का घर बनाया और अमन बनाया। 99% जो तर्जुमे हैं और तफसीरें हैं, अक्सर में आप देखिएगा, सबने समझाने के लिए लिखा है कि जॉय अमन बनाए, हालांकि दरअसल तर्जुमा ये नहीं है। इसलिए कि जब मस्दर आता है जात की जगह तो वो दाल अलल मुबारका होता है कि उसमें इसके अलावा कोई और शय देखी ही नहीं गई, जिसकी मिसाल नहवियों ने दी, मुल्ला जामी ने मिसाल दी है कि जैसे कोई शख्स कहे अली क्यों आदिलुन, वो कहते हैं मैं बाकियों के बारे में लिखूंगा फुलानुन आदिलुन, फुलानुन आदिलुन, फुलानुन आदिलुन, वो कहते हैं मैं अली के बारे में आदिल नहीं लिखूंगा, अली का लिखूंगा अली क्यों आदिलुन, इसलिए कि अली ने सिवाय आदिल के कुछ देखा ही नहीं है। अब ये कानून नहव का समझ में आ गया कि जब मस्दर जात की जगह आए तो समझिए इसके अलावा कुछ था ही नहीं, सब कुछ यही है, 100% यही क्वालिटी है इसके अंदर, इसलिए मस्दर को जात की जगह लाया गया। जिस तरह अली आदिल, अली है आदिल है, नहीं ये कि अली आदिल है। समझो, अल्लाह अकबर, अली ऐन आदिल है। इसी तरह कहा वह जानल बैता मसाबत लिन्नास व अमना, याद करो हमने इस बैतुल्लाह को सवाब बनाया है, लोगों के लिए सवाब की जगह बनाया है, वह अमना, और इसे ऐन अमन बनाया है। बैतुल्लाह ऐन अमन है, काबा जाए अमन नहीं, ऐन अमन है। अगर जाए अमन तर्जुमा करे तो कहीं फसाद की इजाजत हो और कहीं फसाद की इजाजत न हो। मरकज अमन कह के साबित कर दिया कि जो बैतुल्लाह की तरफ रुख करता है वो दहशतगर्द तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि मरकज अमन है और ऐन अमन है। आपको इसलिए कुरान ने कोटेशन दी, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। हमारे यहाँ हमें मालूम तो हो, सैंपल के तौर पे जब वो खुद मांग रहे हैं कि उन्हें कंप्लीट मुसलमान बनाए रखना, उनकी जुर्रियत में उम्मत मुस्लिमा रखना, तो जरा बता तो दे कि मुसलमान होता कौन है कि जिसका बरगश्त का बिल्कुल एहतमाल ही नहीं रहता, तेरी तरफ से गारंटी होती है कि उसका खातिमा अल इस्लाम होगा। तो अल्लाह ने खुद कोटेशन दी, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। उस वक्त हमने इन बाप बेटे को मुकम्मल इस्लाम का सर्टिफिकेट दिया कि जब बाप ने बेटे को कुर्बानगाह में लिटा दिया तो एक बात और तय हो गई कि जब भी बाप अपने बेटे को एक लम्हे के लिए कुर्बानगाह में लिटाता है तो बाप भी मुकम्मल मुसलमान, बेटा भी मुकम्मल मुसलमान। तो मुसलमानों जरा ईमान से बताओ, अगर इब्राहिम और इस्माइल को मुकम्मल इस्लाम का सर्टिफिकेट एक लम्हे के लिए या एक घंटे की खिदमत के लिए मिल रहा है तो जरा उसके बारे तो बताओ जिसने अपने बेटे को शेर अबी तालिब ने 3 साल तक मोहम्मद के बिस्तर पर लिटाया हो।
भी बहुत परेशान है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि राइट मुस्लिम का पता चले और फेक मुस्लिम का पता चले। तो ये हमारी तकरीर अगर ट्रांसलेट करके दे दी गई तो बहुत फायदा हो जाएगा उनका, उन्हें लाखों डॉलर खर्च नहीं करने पड़ेंगे, इसलिए कि ये रिसर्च हुई उनको मिल जाएगा। तो जो कर रहे हैं ना, तो आज देखिए एक जुमला लेके जाइए कि कलेमा, सिर्फ कलेमा पढ़ने वाले को हम मुसलमान नहीं मान सकते, इसलिए कि इन आयतों में वादे कर दिया है जब तक 100% सरेंडर नहीं करोगे आकाम इलाही के सामने। यही वजह है कि गुनाहगार की तौबा कबूल है मगर उसकी तौबा कबूल नहीं जो तजर्री अला ज़म करता हो, जो गुनाह पे अकड़ता हो, उसकी तौबा ही कबूल नहीं। इसलिए कि सरेंडर होता ही समझे। जो गुनाह पे अकड़ने वाला है उसको जूरिस्प्रूडेंस में कहते हैं अत्तजर्री अला ज़ंब, के गुनाह पे जुर्अत की है। जो जुर्अत करता है गुनाह पे वो अल्लाह को चैलेंज करता है, लिहाजा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो एक ये हेल्प कर दीजिए अमेरिकन गवर्नमेंट की कि देखिए गुनाह इस्लाम में बर्दाश्त हो जाएगा, उसकी तौबा है, मगर तजर्री अला ज़ंब की, जुर्अत गुनाह की कोई तौबा नहीं है। अगर कोई कातिल मार के अकड़ जाएगा, हाँ वो मिंबर पे हो या जहाज में, बैतुल्लाह को आमन बनाया है, जाए अमन नहीं। फीह आयातुम बय्यिना वमन दखलहु काना आमिना। पुरामन तो वो होता है, बदल लीजिए, पुरामन तो वो होता है कि जो पुरामन वो है जो वहां चला जाए, समझ जो चाहता हूं। आमन वाला वो है जो मरकज आमन में चला जाए। गौर कीजिएगा, अगर थके नहीं तो जुमला कहूं, अल्लाह ने घर क्यों बनाया? इसलिए कि घर तरबियत में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अगर घर ही नहीं होगा तो तरबियत कहां से होगी? तो पहले घर बनाया, बाद में तरबियत का सामान किया। समझो कर रहे हैं या नहीं? और आपके यहां जो मासूम का स्कूल चलता है, आपके यहां आपकी एक ही ख्वाहिश रही है हमेशा कि बच्चे अच्छे निकले। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर बच्चे अच्छे ना हुए तो घर पे बात आएगी। तवज्जो है या नहीं? मौलाना को किसी ने ब्लेम नहीं करना, प्रेसिडेंट को किसी ने ब्लेम नहीं करना, ब्लेम करेंगे घर को, इसलिए कि लोग जानते हैं घर मुअस्सिर है तरबियत में। तवज्जो है या नहीं? घर मुअस्सिर है तरबियत में। आप ये ना समझिएगा कि आप अगर स्टेप नहीं लेंगे तो मोज़े के साथ आपके बच्चों की तरबियत हो जाएगी, ये कभी ना समझिएगा। तो जो है या नहीं? 2-3 घंटे में मासूम का स्कूल आपके बच्चों की तरबियत थोड़ी करेगा। या तो सिर्फ सैंपल दिया जाता है, आपको घर से तरबियत करनी पड़ेगी। तरबियत आपको घर से करनी है। तवज्जो चाहता हूं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी पहले घर बनाया और अल्लाह ने अजीब काम किया, उस घर में एक शख्स को ऐसे को ले आया कि जिसके बाबा को लोगों ने नहीं बख्शना था, ऐसे को ले आया कि जिनके बाबा को बावजूद मुरब्बी इस्लाम होने के, मुरब्बी रहमतुल लिल आलमीन होने के, लोगों ने उसके ईमान पे शक किया। तो अल्लाह ने भी तय कर लिया कि मैं इसके बेटे की विलादत इसके घर में नहीं होने दूंगा। जब तुमने इसे माफ नहीं किया, इसके बेटे को भी माफ नहीं करोगे, तो क्योंकि बात घर से शुरू होती है। मैं इसे अपने घर में ले आता हूं, पहले मेरे अंदर तलाश करो, फिर आनी मेरा
सबीला। हुक्म हज में कहा इसी बैत का तुमने तवाफ करना है, अपनी तरफ से न बना ले, इसी बैत का। और अल्लाह सबको ले जाए हज पे। जो गए हैं उन्होंने तो बारहा देखा है कि बैत और हरम में एक बुनियादी फर्क होता है। यह भी एक पहलू है तरबियत का। बैत और हरम में फर्क तो बहुत है। एक बुनियादी फर्क यह है कि जो गिलाफ के अंदर है वो बैत है, जो गिलाफ से बाहर है वो हरम है। तो बस बात तो मैंने कह दी। जो चादर जमाली के अंदर है वो अहले बैत है। ये बैतुल्लाह में जो आपको साल में एक मर्तबा, जिंदगी में एक मर्तबा बुलाया जाता है आपकी तरबियत के लिए। जी हाँ, जो हज के बाद भी न सीखे फिर उससे खुदा समझे। इसलिए कि हज वाहिद इबादत है जिसमें इंसान को अपनी रियलिटी सामने रख दी जाए। आप तमाम इबादतों में तसन्नो कर सकते हैं, हज में तसन्नो है ही नहीं। हर तसन्नो पे कफारा है। तो जो कह रहे हैं नहीं, ये भी एक ट्रेनिंग है खुदा की कसम। अब ट्रेनिंग है, ये बच्चों की नहीं सबकी। ये पूरी कौम की ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है आपको वहां पर। और आप जब जाते हैं तो जाहिर है कि आप तवाफ करते हैं खाने काबा का। अब ये वही जुमला है, आप अपनी मर्जी से जैसे यूं आ रहे हैं तो ये उल्टा तवाफ नहीं कर सकते। क्यों? उसकी वजह यह है कि हुक्म शरीयत यही है कि आपने लेफ्ट शोल्डर को हजर अस्वद की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ रखना है, जिसको आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है ना? आपने ये हक ही नहीं है कि आप तवाफ में चेंज कर सकते। समझो चाहता हूं। जी हाँ, आप डायरेक्शन नहीं बदल सकते। मैं जरा सवाल करूंगा आपसे, आप सारी उम्मत वाले इजमा कर लें तो तवाफ की डायरेक्शन नहीं बदल सकते, आप डायरेक्टर को कैसे बदल लेंगे? जो है या नहीं मेरे मैं जरा बच्चों को जो जवान तशरीफ फरमाए उनको समझाने के लिए एक जुमला कहता हूं। सूरतुल फातिहा नमाज में वाजिब है। ठीक है? क्या मुमकिन है आप फातिहा के बगैर नमाज पढ़? ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब हदीस है। नमाज हो ही नहीं सकती जब तक आप सूरह फातिहा न पढ़े। इसी सूरह को फातिहा भी कहा गया, इसी सूरह को हम्द व शुक्र भी कहा गया, इसी सूरह को सूरतुल दुआ भी कहा गया। 7 नाम है, सबुल मसानी भी इसी को कहा गया। ये वाहिद सूरह है जो 2 शहरों में नाजिल हुआ है, मक्का में भी आया है और मदीना में भी आया। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम। ऐ मेरे हबीब, हमने तुम्हें 7 आयतों वाला सूरह 2 मरतबा दिया और पूरा कुरान दिया। तवज्जो चाहता हूं। अब जरा बताइएगा मेरे शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों कि आज क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी हाफिज साहब से कहें कि सरकार पूरा कुरान पढ़ लीजिए, आज हम फातिहा के बगैर 2 रकत पढ़ना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। ये तरबियत है, ध्यान में रखें। ये तरबियत हमारी, इसलिए कि नबी ने कहा सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। नमाज ऐसे ही पढ़ना जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखा था।
سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ پتہ نہیں مسلمانوں نے کئی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک نہ رہ سکے. کل میرے ایک دوست نے بذریعہ فون کہا کہ آپ نے جو یہ بتایا کہ غدیر کا اعلان کیا تھا 1,23,000 کے مجمع میں، ان کو یاد ہی نہ رہا. 1,30,000 کے مجمع میں جو اعلان کیا غدیر کا، یہ سارے بھول گئے. میں نے کہا غدیر کا اعلان تو صرف ایک مرتبہ ہوا ہے. نبی نے 23 سال میں نماز پڑھی ہے، صبح کی بھی پڑھی ہے، ظہر کی بھی پڑھی ہے، عصر کی بھی پڑھی ہے، مغرب کی بھی پڑھی ہے، عشاء کی بھی پڑھی ہے، تہجد کی بھی پڑھی ہے. امت کو نماز ہی یاد نہ رہی، ایک دن کا غدیر کیسے یاد رہے؟ کیسے یاد رہ جاتا؟ یہی وجہ ہے کہ دو بزرگ صحابی ہیں، دو بزرگ صحابی، وہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے صفین کے میدان میں. دونوں کے دونوں بزرگ صحابیوں نے جب علی کے پیچھے نماز پڑھی تو مصافحہ کرتے وقت ایک کامنٹس دیے، کامنٹس عجیب دیے. سنیے، کہتے ہیں فتن ذکرتنا صلاۃ الرسول، اے جوان آج تو نے ہمیں نبی کی نماز یاد کرا دی. تو یاد وہی کراتا ہے، وہی کرائی جاتی ہے جہاں بھول گئی ہو. تو میں نے عرض کیا کہ نماز میں جو سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الحمد ہے، اگر ہم اس کو نہ پڑھیں، سورہ یاسین پڑھ لیں اس کی جگہ، سورۃ الملک پڑھ لیں، سورہ بنی اسرائیل پڑھ لیں، سورہ بقرہ پڑھ لیں، بہت لمبا سورہ ہے اسے پڑھ لیتے ہیں، سورہ نساء پڑھ لیتے ہیں، یہ دونوں سورے ایسے ہیں جو 3 پاروں میں چلتے ہیں، آل عمران پڑھ لیتے ہیں، کیا نماز ہو جائے گی؟ شیعہ کی یا سنی کی؟ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں. سب یہ کہتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو ہی نہیں سکتی. حالانکہ ایمان سے بتائیے سورہ یاسین بھی اللہ ہی کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. فاتحہ بھی اللہ ہی کا ہے، سورۃ الحمد بھی اللہ کا سورہ ہے، سورۃ یاسین بھی اللہ کا سورہ ہے. تو میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا مسلمان فروع دین کی بابت تو اتنا کانشیس ہے کہ اللہ کے سورے کی جگہ اللہ والا سورہ نہیں رکھتا، مگر اصول دین کی بابت کتنا کیئرلیس ہو گیا، اللہ والے کی جگہ اجماع والا رکھ رہا. مولانا تھے، مولانا الہی بخش مسلم مسجد والے، بڑے خطاب فرما رہے تھے اور بار بار یہ کہے جا رہے تھے کہ ایک شب، اب میں روایت کا ضامن نہیں اس لیے کہ انہوں نے پڑھی ہے، فرماتے ہیں ایک شب تمام صحابہ کرام حالانکہ بار بار کہتے رہے مگر اس وقت تک فجر نہ ہوئی جب تک کہ بلال نے اذان نہ کہی. اور انہوں نے جو فٹ نوٹ کا لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر بھی، اور جو خطاب بھی فرمایا تھا اس میں بڑا عجیب جملہ لکھا. انہوں نے لکھا اس لیے کہ کس کی مجال تھی کہ اسے گلدستہ اذان سے ہٹا لے جسے محمد نے اپوائنٹ کیا ہو. تو میں ہاتھ جوڑ کے مسلمانوں سے اتنا ہی کہوں گا، جب سارے صحابی مل کے محمد کا مؤذن نہیں ہٹا سکتے تو سب نے مل کے محمد کا بنایا وہ مولا کیسے ہٹا.
जन्नत के लिए। अगर हज के बाद आपने चेंज नहीं आई तो वही लिख लीजिए कि कबूल नहीं। जैसा कि नमाज के बारे में भी इरशाद रब्बुल इज्जत है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज है ही वो कि जो आपको बुराई से रोक। अगर नमाज भी है और बुराई भी है तो समझो टकरे हैं नमाज में। जी हाँ, इबादत नहीं। इसलिए कि एक जुमला आज सुन लीजिए, एक जुमला आज सुनते जाइए। जब इसने इतना के कहा था इब्लीस ने कि मैं तो 40-40 हजार का एक एक सजदा करता रहा, इतने जल्दी मुझे धुतकार रहा, तो इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ इसे आगे लेके जाइएगा, ये अपने बच्चों के लिए तरबियत के लिए बेहतरीन फाउंडेशन करार दे दीजिएगा। इस एक जुमले को, हदीस कुदसी को। इरशाद हुआ तूने क्या कहा? कहा मैंने तेरी इबादत की। कहा क्यों नहीं करता? कहा अपनी करा ले, इसके सामने न झुका। इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ ताअती मिन हैसु उरीद ला मिन हैसु तुरीद। मेरी इताअत वो है जिसे मैं चाहूं, न वो जिसे तू चाहे। तो आप इबादत में अपनी मर्जी शामिल न कीजिएगा। तवज्जो है या नहीं? इसने अल्लाह की इबादत का तो इनकार किया ही नहीं, इसने तो सिर्फ अपनी मर्जी शामिल की है उसमें। नहीं समझे शायद? मैं कैसे समझाऊं मेरे दोस्तों? अगर इब्लीस फुरुए दीन में अपनी मर्जी शामिल कर ले तो वो शैतान बन जाता है, और आप उसूल दीन में अपनी मर्जी शामिल करके मुसलमान कैसे करें? जितने मुसलमान जाते हैं हज बैतुल्लाह पर, तवाफ करते हैं खाने काबा, मैंने देखा है खुदा की कसम, चाहते या न चाहते, खा न खा, विलिंगली या अनविलिंगली, जैसे ही रुकने यमानी पे आते हैं तो हाथ खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि वहां पर हजर अस्वद तो नहीं, नूर अबियस, अल्लाह अकबर, इसलिए कि वहां वो जगह मौजूद है, निशान मौजूद है जो मादर अली के लिए शक हुआ था विलादत अली के लिए। जो कर रहे हैं ना, वहां पर सलाम करते हैं, वो कयामत तक के लिए अल्लाह ने भी अजीब बंदोबस्त कर दिया कि ऐ उम्मत मोहम्मद वालों, तुम कयामत तक मेरे घर का तवाफ भी करना, अली की अजमत को सलाम भी करना। जो दोस्त हमारे इस वक्त हमारे साथ थे इस साल हज पे, हमने तो बहुत देर तक रुकने यमानी के बोसे भी लिए हैं और वहां अपने दोस्तों के लिए दुआ भी की है। जैसे वहां से आपने टर्न किया तो हजर अस्वद है। अब कोई भी फिरके वाला हो, बोसा लेने में सबकत करता, कोई भी हो। हमने तो ये भी देखा कि एक मौलवी साहब थे न्यूयॉर्क के, पिछले साल हमारे साथ, उन्होंने यानी जब तवाफ कर रहे थे तो मैंने उन्हें देखा, बाद में मैंने न्यूयॉर्क में पूछा, मैंने कहा भाई आप भी वहां सलाम कर रहे थे? और मैंने देखा कि आपकी जब अप्रोच न हुई हजर अस्वद तक तो आपने यूं इशारा किया अपने हाथ का, तो किबला है तो ये भी पत्थर है, और पत्थरों से भाग के तो मुसलमान हुए थे। अल्लाह अकबर। और यहाँ है तो फिर पत्थर। तो पता चला कि किसी मटीरियल पे मत जाना, निस्बत पे जाना। जो है नहीं, इसलिए कि मीनार में भी 3 पत्थर ही हैं, उन्हें तो किसी मुसलमान ने कभी नहीं चूमा।
اس لیے کہ مسلمان عقلمند ہے، وہ اتنا جانتا ہے حجر اسود کو اس لیے چومنا ہے کہ وہ بیت سے منسلک ہے، اور ان کو اس لیے مارنا ہے کہ وہ بیت سے دور ہے۔ بس تقریر تمام ہوئی ایک جملے پر۔ اس سال جب ہم گئے مولد رسول پر تو ہمارے دوست ہیں حاجی ابو علی، انہوں نے ہمیں بتایا، وہ دعائیں بھی پڑھاتے ہیں قافلے میں، کہ مولانا تصویریں لے لیجیے، اس لیے کہ طے ہو چکا ہے کہ اگلے سال خانہ رسول کو مسمار کر دیں گے۔ نہیں ہوگا مولد رسول جہاں رسول پیدا ہوا، وہ کل انشاءاللہ ڈیٹیل بتاؤں گا کہ وہ جگہ اصل ہے کیا، مگر آج اتنا ہی سن لیجیے، مولد رسول کو مٹانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس سال کا آپ پکچر لے لیجیے، تصویریں لے لیجیے۔ ہم نے تصویریں لی، خدا کی قسم تصویریں جب میرے دوست لے رہے تھے میرا رخ پھر گیا کعبہ کا۔ میں نے کہا یا علی تیری عظمت کو سلام، مولد رسول کو مسمار کرنے کا سوچ تو رہے ہیں، ذرا مولد علی کو مٹا کے دیکھیں۔ یہ اسی علی کا بیٹا تھا کہ جس نے علی کے داماد کو بھیجا کوفہ شہر میں تاکہ ان مصلحت پسندوں کے خطوط کا عملی جواب دے دیا جائے جنہوں نے تبلیغ کی غرض سے فرزند رسول کو خط لکھے تھے۔ ایک خط کی عبارت ہے، کہتے ہیں کہ اِنَّا مِئَةَ أَلْفِ سُيُوفٍ مَعَكَ يَا ابْنَ رسول اللہ، 1,00,000 تلوار آپ کی حمایت میں ہے اے رسول کے بیٹے۔ یہ خط وہاں موجود ہے۔ رسول کے فرزند ہماری تبلیغ کے لیے آئیے۔ آپ نے انتخاب کیا اپنے چچا عقیل کے فرزند مسلم کا، مسلم بن عقیل۔ راوی یہ لکھتا ہے کہ مکے میں تھے، 15 رمضان کو چلے ہیں اور 5 شوال کو حضرت مسلم کوفہ میں پہنچ گئے۔ مقتل میں یوں جملے لکھے ہیں کہ جب حضرت حسین ابن علی نے کہا کہ بھائی آپ کو جانا ہے کوفہ ہمارا سفیر بن کر، تو عجیب جملہ ہے روایت کا کہ فبکیا، مسلم بن عقیل رونے لگا، اور جیسے ہی روتا ہوا دیکھا تو فضمہ الی صدرہ، امام نے اپنے سینے سے لگایا، دلاسا دیا، کہا بھائی جانا ضرور ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ فرزند رسول کے سامنے روئے کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان الدہر فرق بینی و بین الحسین، میں اس لیے نہیں رویا کہ میں پرخطر وادیوں کا سفر کروں گا، میں تو اس لیے رویا کہ حسین کی زیارت سے محروم ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، کیا عشق تھا حسین کا مسلم کے دل میں۔ راوی یہ لکھتا ہے کہ جب دونوں بھائی گلے ملے ہیں تو مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ کأنی ارا آخر اللقاء، مولا مجھے وجدان بتاتا ہے کہ میری آپ کی آخری ملاقات ہے۔ الملتقی یوم القیامت ابن رسول اللہ، رسول کے فرزند بطول کے لال، اب ہماری آپ کی ملاقات قیامت میں ہوگی۔ یہ ان کا جواب ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کا علم نہ تھا، سب کچھ علم تھا، مسلم سب کچھ جانتے تھے کہ اب جا رہے ہیں تو واپس نہیں آئیں گے۔ میرے عزیزوں، جب چلے ہیں مسلم تو حضرت رقیہ نے کہا، ان کی اہلیہ نے کہا لمبا سفر ہے، طویل مسافت ہے، کیوں نہ اپنے بچوں کو ساتھ لے لیں۔ تو حضرت مسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور کہا کہ ذرا بنت عم، ذرا ان کی چوٹیوں کو دھو دے، ان کے بالوں کو اپنے دستے مبارک سے دھو دے۔ علی کی بیٹی نے اپنے بیٹوں کے بال دھوئے، اور روتی بھی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے
न मालूम अब तुम्हें कोई जुल्फों में कंघी कर सके या नहीं, न मालूम अब तुम्हें कोई गुस्ल दे सके या नहीं। जैसे ही ये छोटा सा काफिला सफारत आले मोहम्मद का गया है, तो रावी कहता है कि जब पहुंचे हैं तो 30,000 अफराद ने हाथ में बैत की। एक शब्द जब मगरिब की नमाज पढ़ाई तो 18,000 लोग थे बैत में, जब इशा की पढ़ाई तो 18 भी नहीं रह गए। मेरे अजीजों, जब ये वक्त आया हानी के घर में पनाह ली, रात के पिछले हिस्से में निकल गए इस वजह से कि हानी गिरफ्तार हो गए, कहीं गजर न पहुंचे हानी के घर को। एक ज़ईफा के घर के सामने गरीबों मुसाफिरों की तरह बैठ गए। मेरे अजीजों, पिछला हिस्सा है रात का, आज ही मैं मुताला कर रहा था, पिछला हिस्सा है रात का जब अरब दरवाजे बंद कर देते हैं। ये बीबी आई है ज़ईफा, दरवाजा बंद करने के लिए। इसने क्या देखा कि दरवाजे की ओट लगाए हुए एक मुसाफिर बैठा। कहती है, मुसाफिर हालात नासाजगार है, तू अपने घर चला जा। मुस्लिम की चीख निकल गई, कहा ज़ईफा अगर मेरा घर होता तो मैं परदेशियों की तरह तेरे दरवाजे पे ना बैठता। ठीक है मुसाफिर, जरा मेरे दरवाजे को छोड़ दे। दरवाजे को छोड़कर दीवार की टेक लगा के बैठे। मेरे अजीजों, इधर जैसे ही इस बीबी ने दरवाजा बंद किया, इसने इस मुसाफिर की आवाज सुनी, या अली अदरिकनी। भाई ये सुनना था, मुआरिख ने लिखा, इसने फौरन दरवाजा खोला और इसने कहा, तू अली को मानता है? तू अली को मानता है? ये आले मोहम्मद का तरीका रहा, जब भी उन पर मुसीबत नाज़िल होती तो कहते या अली अदरिकनी, अली मेरी मदद को आ। क्या तू अली को जानता है? कहा, बीबी जैसा मैं अली को जानता हूं इस कूफा में कोई नहीं जानता। कहा, मुसाफिर जरा इतना बता, तेरा अली से कोई ताल्लुक है? कभी भी जो मेरा ताल्लुक है अली से, वो कूफा में किसी का नहीं। कहा, ज्यादा मुझे तशवीश में न डाल। मुसाफिर बता, तू है कौन? कहा, अना मुस्लिम बिन अकील। जैसे ही कहा मुस्लिम बिन अकील, फौरन इस बीबी ने कहा, हल अंत सफीर हुसैन, क्या मेरे मौला हुसैन का सफीर तू है जिसके लिए फौजें ढूंढने के लिए निकल चुकी है? हाँ मैं सफीर हुसैन हूं। कहा, तकद्दम या सैयदी, तो फजल या सैयदी, ऐ मेरे सैयदो सरदार, मेरे घर में आइए, तशरीफ रखिए। जब तहज्जुद की नमाज पढ़ चुके हैं, सफीना शहर में मुबार होने लगा, तजदीद वुजू की और फजर की नमाज पढ़ी। अभी तस्वीर पढ़ रहे थे कि घोड़ों के हिलहिलाने की आवाज आई, एक दूसरे से तलवारों के टकराने की आवाज आई। एक मर्तबा ये कह के निकल गए कि बीबी हम अहले बैत ये बर्दाश्त नहीं करते किसी का घर उजड़ जाए, इसलिए मैं तेरे घर से निकलता हूँ। तब मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, अरे मुस्लिम, तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हुसैन की आजादार का, हुसैन की हुक्मदार का घर उजड़ जाए। जरा करबला में आजा, तेरा सारा घराना उजड़ गया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये कह के चले, ये कह के चले कि हम किसी का घर उजड़ता हुआ देख नहीं सकते। अब जो बर्दाश्त न कर सके वो मुझे माफ कर दे। मगर आज मैंने रिवायत जो पढ़ी है मैं जरूर बयान करूंगा। मेरे अजीजों, 41 लोगों को कत्ल किया है हजरत मुस्लिम ने। जब इसने इब्ने अशअस ने कहा, खत लिखा और कासिद भेजा दरबार में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कि और घोड़ सवार भेज, तो उसने जवाब में लिखा कि एक शख्स तुम इतने लोगों से मारा नहीं जा रहा। अजीब जुमला उसने भी लिखा है, वो ये लिखता है, तूने क्या समझा है कि किसी बक्काल से लड़ाई है? तूने क्या समझा है कि किसी आम इंसान से लड़ाई है? तुझे खबर हो ये बनी हाशिम का खून है, ये पुश्तों के पुश्ते करता जा रहा। मेरे अजीजों, जब फौजों पे फौजें आई है, 3 तरफ से फौजों ने घेरा, मगर उसके बावजूद मुस्लिम लड़ते जा रहे थे। जिस तरफ जाते उधर पुश्तों के पुश्ते कर देते। इन जालिमों ने क्या किया, अपनी फौज को छतों के ऊपर भेजा, उनके हाथों में पत्थर दिए, हाथों में ईंटें दी।
अजर दिए, पत्थर दिए, ईंटें दी, पत्थर मारे गए, ईंटें मारे गए। मुझे शहादत मुस्लिम की कसम, ये रिवायत देख के मैं आज आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, और मैंने ये हजरत मुस्लिम की रूह से वादा किया कि ये रिवायत जरूर पढ़ूंगा, इसलिए कि हुसैन इब्न अली की मजलूमियत से मुस्लिम की मजलूमियत मुशाबे हो रही है। जब ईंटों के बावजूद, पत्थरों के बावजूद मुस्लिम को ज़ेर न कर सके, इन्होंने छतों पे आग जलाई और जलती हुई लकड़ियां सफीर हुसैन के सरे अकरस में फेंकी। इधर से चलती हुई लकड़ियां मुस्लिम के बदन में लगी, इधर से तीरों ने चोटा, तलवारों ने चोटा, नेज़ों ने चोटा, गुर्ज लगे, पत्थर लगे, उसकी तरफ से एक गड़ा खोदा गया, सफीर हुसैन उस गड़े में गिर गया। जब सफीर हुसैन गड़े में गिर गए, सुनिएगा जुमला, रावी लिखता है, बार बार मक्का का रुख करते, बार बार मक्का का रुख करते, जख्मों में चूर है मगर बार बार मक्का का रुख करके कहते, भाई कूफा की तरफ न आइएगा, फातिमा के लाल कूफा न आइएगा, शराब और तुझ पे मुस्लिम, तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं, तुझे फिक्र है तो गरीब ज़हरा की, तुझे फिक्र है तो मजलूम ज़हरा की। मौला कूफा ना आइएगा, मौला कूफा ना आइए। आखिर पकड़ के, गिरफ्तार करके, जिंदा हालत में, जख्मी हालत में गिरफ्तार करके ले आए। जैसे ही आए हैं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में, तो दरबार ने कहा, अय्युहल मुस्लिम, ऐ मुस्लिम, सल्लिम अलल अमीर, अमीर पे सलाम कर। एक मर्तबा मुस्लिम गैरतमंद इमाम का गैरतमंद सफीर कहता है, वल्लाही मा हुवा लियल अमीर, खुदा की कसम मेरा ये अमीर नहीं। अल्लाह अकबर। दरबार पूछता है, मन अमीर का, तेरा अमीर कौन है? फरमाते हैं, माली अमीरुन सिवल हुसैन, हुसैन के सिवा मेरा कोई अमीर नहीं, मेरा अमीर हुसैन है। ये कह के आगे बढ़े, सलाम नहीं किया, सलाम नहीं किया, इसने बहुत बुरा मनाया। आखिर इसने हुक्म दिया कि जाओ दारुल अमारा की छत पे मुस्लिम को ले जाओ और जाके जबा कर दो। मेरे अजीजों, जल्लाद आया है, जरा सुनिएगा मकतब। जब जल्लाद आया है, इधर मुस्लिम की गर्दन झुक गई, उधर जल्लाद ने खंजर चलाना चाहा मगर एक मर्तबा भी खंजर गिर गया, दूसरी मर्तबा भी खंजर गिर गया। जब तीसरी मर्तबा खंजर गिर गया तो एक सालिब ने पूछा कि तू तो तजुर्बाकार जल्लाद है, इसे कत्ल क्यों नहीं करता? मैं जब भी मैं तलवार चलाना चाहता हूँ, नबी अपनी रीशे मुबारक पकड़े हुए सामने आ जाते हैं और मुझसे कहते हैं, ऐ जल्लाद, मेरे मुस्लिम ने तेरा क्या बिगाड़ा? मौला सलामत रखे, मौला आबाद और शाद रखे। बस मेरे अजीजों, इधर सुनिएगा जरा तवज्जो से। जब चौथी मर्तबा जल्लाद ने खंजर चलाना चाहा तो एक मर्तबा आह निकल गई। जल्लाद ने पूछा, मुस्लिम कुछ कहना चाहते हो? कहा, एक लम्हे के लिए रुक जाओ। कुछ लोग नजर आ गए मुस्लिम को जो दारुल अमारा के सामने ईद के लिए सामान खरीदने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लिए बाजार की तरफ जा रहे थे। मुस्लिम ने कहा, लोगों, अगर मेरे को यतीम नहीं जाए उन्हें तो बताना मैं मारा गया। जज़ाकल्लाह। आखिरी जुमले, इधर हुसैन इब्न अली मंजिल पे रुके हुए, मंजिल पे हुसैन इब्न अली रुके हुए हैं। एक मर्तबा मेरे मौला हुसैन का रंग मुतगय्यर हुआ। अब्बास सामने आए, कहा, मौला खैर तो है? कहा, अब्बास खैरियत नहीं। कहा, क्या हुआ? कहा, जरा मेरी दो उंगलियों के दरमियान दे। अब जो अब्बास ने देखा, मुस्लिम का सर झुका हुआ है और जल्लाद तलवार लेके खड़ा है। एक मर्तबा कहते हैं, मौला आप